Now we will continue. We are in stanza number 3. Okay, we are in stanza number 3. Line number 1, 2, 3, 4. Line number 4. Okay, line number 4. Meanwhile, the priest in Solomon council sat and heard what each had done to merit best the gift of heaven. Okay, at that time there was a committee. There was a Solomon council. Solomon council means serious council. Serious council means serious committee. Okay, there became a serious committee of priest. टेम्पल कोर्ट में जो प्रिस्ट थे उनकी एक कमेटी बन गई, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई और वो सीरियसली लोगों के जो अच्छे काम थे, मतलब वहां जो लोग जमा हुए थे और जमा होके वो हर एक सामने आके अपने अच्छे काम बता रहा था, उन अच्छे कामों को सुनने का काम वो कर रहे थे. मीन्स द सोलोमन काउंसिल, द सीरियस काउंसिल ऑफ प्रिस्ट sat and started hearing what each man had done, what each person had done for the people. ओके, मतलब लोगों का भला या लोगों का अच्छा काम हर एक पर्सन ने क्या किया था लोगों के लिए, वो सुनने का काम करने लगे. द बेस्ट गिफ्ट फ्रॉम टू मेरिट द बेस्ट गिफ्ट फ्रॉम हेवन. टू मेरिट द बेस्ट गिफ्ट मीन्स टू क्लेम द गोल्डन प्लेट which had fallen from the heaven. मतलब गोल्डन प्लेट को क्लेम करने के लिए हर पर्सन सामने आके उसने जो अच्छे काम किए थे, जो गुड वर्क किया था, उस गुड वर्क को बताने लगा. और जो कमिटी ऑफ प्रिस्ट थी, वो कमिटी ऑफ प्रिस्ट, काउंसिल ऑफ प्रिस्ट उस काम को सुनने लगे और हर कोई आगे आके उस गिफ्ट ऑफ हेवन को क्लेम करने लगा और क्लेम करने के लिए उसने किए हुए अच्छे काम बताने लगा. Each and every person started to tell what he had done, good work or actions of mercies, deeds of mercy in front of the priest, and priest started hearing those words to merit the best, the gift of heaven. So for a year the claimants came and went. तो ये जो सिलसिला था ये एक साल भर चलता रहा. Throughout the year, for a year, claimants came. They told the deeds of mercy and they went. Claimants came. They told the deeds of mercy and they went. Claimants came. They told the deeds of mercy and they went. Claimants. Who are the claimants? Those who state the right to get something. क्लेम करने वाले, जो जिनको लगता था कि ये गोल्डन प्लेट मुझे मिलनी चाहिए, उनको बोला गया है क्लेमेंट. क्लेमेंट मींस द पर्सन हु क्लेम्ड टू द गोल्डन प्लेट, हु क्लेम्ड द राइट, हिज राइट टू गेट द गोल्डन प्लेट. द पर्सन हु स्टेट और द पर्सन हु स्टेटेड द राइट टू गेट द गोल्डन प्लेट, that person was claimant. So the claimants came and went. पूरे साल भर claimants आते रहे, वो अपने अच्छे काम बताते रहे और अच्छे काम बताने के बाद वो जाने लगे. मतलब for the year the priest could not decide who was the winner. मतलब पूरे साल भर प्रिस्ट लोग ये डिसाइड नहीं कर पाए कि क्यों कौन विनर है, किसको गोल्डन प्लेट देना चाहिए. Who was the winner of the golden plate? The priest could not decide for a year, because for a year people came and went. Okay, there were lots of good people in that city, in the Banaras. बनारस में बहुत बड़ी संख्या में अच्छे लोग थे. सो पूरे साल भर ये उनका जो सिलसिला था वो चलता रहा, for a year. Okay, third stanza completed. Now stanza number 4. At last, after a patient weighing of the worth of all, the priest bestowed the plate of gold on one who seemed the largest lover of the race, whose whole estate within the year had been parted among the poor. This man
all trembling with his joy, advanced to take the golden plate, when lo, at his finger's first touch, it changed to basest lead. All stood aghast, but when the hapless claimant dropped it, clanking on the floor, heaven's guerdon was again transformed to shining gold. बहुत बड़ा स्टैंजा है, अब लाइन बाय लाइन देखते हैं. At last, after patient weighing means patiently observing and hearing. After observing and hearing patiently, okay, from all the people, एक साल भर लोगों ने पृष्ठ के सामने आकर उनके अच्छे काम बता दिए और उनको पेशेंटली सभी पृष्ठ काउंसिल ने सुना, कमिटी ने सुना. सो आफ्टर हियरिंग एंड ऑब्जर्विंग पेशेंटली थ्रू आउट द ईयर, द पृष्ठ सिलेक्टेड द विनर. एक साल भर पेशेंटली सभी का सुनने के बाद, सभी को ऑब्जर्व करने के बाद, सभी के कामों को सुनने के बाद पृष्ठ ने एक विनर को सिलेक्ट किया. ओके, द पृष्ठ बेस्टो मींस प्रेजेंटेड एज अ गिफ्ट, बाजू में मीनिंग दिया है. द पृष्ठ बेस्टो मींस द पृष्ठ प्रेजेंटेड दैट गोल्डन प्लेट टू वन मैन. एक आदमी को पृष्ठ ने उस गोल्डन प्लेट को दे दिया, उसको मतलब एज अ गिफ्ट. उनको लगा कि वो एक विनर है. ओके, ही वाज द विनर. सो द पृष्ठ डिसाइडेड दैट मैन एज द विनर ऑफ गोल्डन प्लेट. अब वो व्यक्ति कौन था, वो पर्सन कौन था? ऑन वन हु सीम्ड द लार्जेस्ट लवर ऑफ रेस मींस ह्यूमन बीइंग्स, community of human beings. That person was the big lover of human being. That person loved human beings, the community of human beings very much. मतलब वो इंसानों से बहुत प्यार करने वाला व्यक्ति था. कैसे? Whose whole estate means property. That man's whole property within a year had been parted among the poor. Parted among the poor means distributed among the poor. That man had distributed his whole property among the poor in a year. उस व्यक्ति ने उसकी सब प्रॉपर्टी, उसके पास जो कुछ प्रॉपर्टी थी, पैसा था या ऑर्नामेंट्स थे, उस सभी प्रॉपर्टी को उसने गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट किया था, बांट दिया था. मतलब उसके पास जितनी भी प्रॉपर्टी थी, उस सभी प्रॉपर्टी को उसने गरीबों को दे दिया था. तो पृष्ठ को ऐसे लगा कि वो जो आदमी था जिसने गरीबों में उसका पूरा प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट किया था, वो आदमी इंसानों से सबसे ज्यादा प्यार करने वाला व्यक्ति है और वो आदमी गोल्डन प्लेट का हकदार है. ऐसा पृष्ठ को लगा, जो कमिटी थी उस कमिटी को ऐसा लगा कि दिस मैन, द मैन who had distributed his whole property among the poor people, that man was the proper receiver of the golden plate. That man was the proper receiver of the gift of heaven. हेवन से जो गिफ्ट आया था, स्वर्ग से जो गिफ्ट आया था, उसका ये असल में हकदार है, ये रियल में हकदार है, ऐसा पृष्ठ को लगा. एंड द पृष्ठ प्रेजेंटेड दैट गोल्डन प्लेट. द पृष्ठ गेव दैट गोल्डन प्लेट गिफ्ट ऑफ हेवन टू दैट मैन हु हैड डिस्ट्रीब्यूटेड हिज होल प्रॉपर्टी अमंग द पुअर. ओके, सो आफ्टर रिसीविंग, जब उसको गोल्डन प्लेट मिला, this man all trembling with joy, this man when he received that award, when the man received the golden plate, the man started trembling with joy. Trembling with joy means he was extremely happy. उसे वो बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ. He started trembling.
Okay, started trembling means he started shivering with joy. He became extremely happy, very much happy. Advanced to take the golden plate. He was ready to take the golden plate. Advance means ready. When he was ready to take the golden plate, and when he took the golden plate in his hands, और जब वो गोल्डन प्लेट उस आदमी ने उसके हाथ में लिया, क्या हुआ? When lo, L-O, lo means देखो क्या हुआ, क्या हुआ? When lo at his fingers first touch, fingers के first touch से lo means see, lo का मीनिंग क्या है? see. हाँ, okay. See, when lo at his fingers first touch, when he touched the golden plate first, when he touched the golden plate first touch of his finger, the golden plate changed to bassist lead. जब उसने गोल्डन प्लेट को टच किया तब वो गोल्डन प्लेट कन्वर्टेड इनटू लीड, वो गोल्डन प्लेट लीड प्लेट बन गई। लीड का मटेरियल उसका हो गया, मतलब बहुत ही चीप मेटल वो बन गया। गोल्डन मेटल बहुत ही एक्सपेंसिव मेटल होता है। जब उस व्यक्ति ने, उस आदमी ने गोल्डन प्लेट को टच किया, वो गोल्डन प्लेट लीड की प्लेट बन गई। द गोल्डन प्लेट कन्वर्टेड इनटू चीप लीड मेटल प्लेट। All stood aghast. All people, all priest committee stood aghast. Aghast का मीनिंग क्या है? Shocked and horrified. All people were shocked and horrified. सभी को बहुत बड़ा शॉक लगा कि ऐसे कैसे हो गया? इतने अच्छे भले आदमी के हाथ में प्लेट जाने के बाद वो प्लेट लीड में कैसे बदल गई? वो एकदम चीप मेटल कैसे हो गई? So all people stood shocked and horrified. But when the hapless claimant dropped it, hapless means meaning दिया, hapless means unfortunate. When the unfortunate claimant, when that unfortunate man dropped that plate on the floor, उस प्लेट को उसने ड्रॉप किया फ्लोर पे, heaven's guerdon का मीनिंग क्या है? रिवॉर्ड। वो जो प्लेट थी, हेवन की प्लेट, was again transformed to shining gold. जैसे ही उस आदमी ने गोल्डन प्लेट को नीचे फेंक दिया, ड्रॉप किया, वो प्लेट फिर से गोल्डन बन गई। ओके, सो हमारा स्टांजा नंबर 4 यहाँ कंप्लीट हो गया है। नाउ वी विल स्टॉप हियर एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द पोएम वी विल लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।